थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल जी आया ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ वाकई एक अपनापन बड़ा महसूस हो रहा है बिकॉज मेरे अमृतसर मेरे सौरे होंदे ने। I would like to tell my viewers sitting at home, I am in Jalandhar today in Punjab, in lovely professional university. आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि बड़े शहरों में तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलती हैं, मेट्रो शहरों में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, पर छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटी हैं कि नहीं, और हैं तो कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाए और किस प्रकार से अपना कैरियर, अपनी सक्सेस को छोटे शहरों में भी देखा जाए। पहले तो आपसे ही मैं कुछ सवाल पूछूंगा। तो आप लोगों को ऐसा क्या महसूस होता है? आप भी यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दूर दराज जगहों से भी आते होंगे, जैसा मुझे बताया गया, जो यहाँ भी कैंपस में भी रहते हैं आप लोग। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस, क्या सोच है आपकी? सर, मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप में बात है, आप में वो पोटेंशियल है, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, तो फिर कोई भी सीमा, कोई भी बाउंड्री आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप हमारे बीच में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में प्रतिभा है, आप में जोश है, आप में उत्साह है, आप में उमंग है, तो फिर कोई भी बाउंड्री, कोई भी सीमा। तो आपको नहीं लगता कि आप छोटे शहर में काम कर रहे हो, रह रहे हो, आपको कोई कंस्ट्रेंट महसूस नहीं होता? दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सर। एनी अदर थॉट फ्रॉम दिस साइड? When I come to Lovely Professions University from a small town, I meet people from civil engineering, from mechanical engineering, from MBA, BBA, from law, and I can make up an organization and I can start working with them because they have knowledge of different sectors. But if I stay in my small town, sir, there are people like a basic 5th class student in a government school back in my town fails to understand and differentiate between numbers from 11 to 99. And sir, there are people who want to come up, break this chain, but are failing to have the proper amount of information. Because today, if you want to be a billionaire, you want to work hard, you need to know about lean management, about TPM, about TQMI, Total Quality Management International. People fail to understand and have the basic stance of normal knowledge. How can we expect rural people coming out and doing something like that? Yes, that's a good question, and that's the general problem of this, or of our country, that बट आप लकी हो कि आप छोटी जगह पे रहते हुए भी आपके आसपास यहाँ पे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप आके अपना सब कुछ एजुकेशन ग्रहण कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। तो और किसी प्रकार की एनी कंस्ट्रेंट यू फील बीइंग अ स्मॉल टाउन बॉय और गर्ल? I belong to a middle class family, and when I just passed out my graduation, at that time I got a seat in the GNDU campus, and my father refused because they don't want to send me to another place. Although this is not a very long distance, this is only 80 kilometers away from Jalandhar, and at that time I feel that there is a constraint, sir. I personally feel this. तो आप क्या कहेंगे? What should be done for this? Sir, there's a need to change our mindset. When you become mother, will you have that same constraint applied to your No, children? sir. I am a mother also. So I have a son. So I feel that if he want to go to another place, I will definitely allow him. So that is the thing, that we should change our mindsets. You want to say something? There is a very serious lack of aspiration amongst the youth of the small towns. They don't have the confidence that we can make it. I heard one student saying it, Neeraj, I can identify him. अच्छे लोग जो हैं उनका विजन भी है, उनका कॉन्फिडेंस भी है, but a large majority of people do not have the courage, one, and do not have the aspiration to venture out abroad. And they are looking for very safe havens, very close to their homes. मेरा ख्याल से मैं आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं एक दूसरी बात लगती कि जो लोग बड़े शहरों में जो लोग रह रहे हैं, उनको छोटे शहर के लोगों से सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। जो अपनापन, जो अपना कम्युनिटी की भावना,
एक दूसरे के साथ मिल के सुख दुख में साथ रहने की भावना, इस प्रकार के जो सोशल फैब्रिक हैं, जो बॉन्डिंग है, वो जो छोटी जगह पे मिलेगी वो बड़े जगहों पे नहीं मिलती है। नहीं सर, यू आर राइट। वैल्यू सिस्टम तो जो छोटे शहरों का है, जो लाइफ है, जो बॉन्डिंग है, जो इमोशनल अटैचमेंट है टू द रूट्स। बच्चे बाहर जाते हैं तो रोज शाम को या पेरेंट्स बात करेंगे या बच्चे बात करेंगे, शायद मेट्रोज वाले ये नहीं कर पाएंगे जी। सो दे आर रूटेड इन द फैमिलीज। सो वो सोशल फैब्रिक में एसिमुलेटेड हैं, दे आर वांटिंग टू कीप दैट अटैचमेंट। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। वैल्यू सिस्टम भी उनका बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू, दे आर मोर हार्ड वर्किंग। हमारे अगर यूनिवर्सिटी से लोग जाते हैं जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से जाते हैं, मेट्रोज में इंस्टीट्यूट हैं, हमारा स्टूडेंट्स का वर्क कल्चर उनसे बहुत अच्छा है। ये कंपनीज हमें कहती हैं कि आपके स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्क करते हैं। रीज़न इज़ हमारे पास लोकल बच्चे हैं, छोटे शहरों से हैं, और इसलिए उनका वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि हार्ड वर्क से प्रोग्रेस करना है। सो वो शायद, यस, लर्निंग इज़ बोथ वेज, लेकिन जो प्रोफेशनल सक्सेस का जज्बा है ना जी, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा था, वो शायद कई छोटे शहरों में लैकिंग है बिकॉज ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट दैट वी हैव जी। बट सोशली कल्चरली यस, दे आर मच स्ट्रॉन्गर। थैंक यू। सर, जो आपने बात कही मैं उससे सहमत हूँ, उसी को बढ़ाना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट फ्रॉम ए नीड। मेट्रो सिटीज़ में यूथ का, स्कूल लाइफ में स्टूडेंट्स का लाइफ इतनी लग्जीरियस है, उनके पास इतने कंफर्ट्स हैं कि वो नीड मर चुकी है, भूख नहीं है, निवाला उनका उठाने का मन ही नहीं करता। जबकि छोटे शहरों में वो ज़रूरत है और वो उठ के वो मेहनत करना चाहते हैं कि वो सपना देखते हैं कि हमें वो अचीव करना है। तो शायद बड़े शहरों को छोटे शहरों से ये जरूर सीखना चाहिए। वेरी गुड जी। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो छोटे शहर की लड़कियाँ हैं उनके पास थॉट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन सर उन्हें अगर कुछ करना है तो वो जैसे जो बाउंडेशंस होती हैं उनके चलते वो काम नहीं कर पाती हैं। तो सर वो अपने आइडियाज़ को सर कैसे अपने फोकस करे, आगे सर कैसे ले जाए एक छोटे शहर की लड़की? मेरा ऐसा मानना है कि चाहे आप लड़की हैं, लड़का है, आज के युग में कोई फ़र्क नहीं है, नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं पेरेंट्स को भी ये कहूँगा कि वो भी उसमें फ़र्क ना समझें, क्योंकि जो शक्ति, जो पावर फीमेल में आपको मिलेगी वो आदमियों में नहीं है। मेरा ऐसा मानना है। मैं पहले भी कुछ जगह कह चुका हूँ ये बात। मैंने अपनी माँ को देखा है छोटे शहर में, छोटे गांव में, बल्कि 300-400 गज की दूरी से सर के ऊपर 2 टोकनी पीतल की रखे हुए, एक यहाँ बगल में लगाए हुए और एक हाथ में लटकाए हुए, रोज़ पानी वो लेके आती थी और कम से कम 30-40 लोगों का खाना खुद हाथ से बना के खिलाती थी। जॉइंट फैमिली थी। और माँ या नारी 9 महीने बच्चा अपने पेट में रखती है, इतनी पीड़ा सहने के बावजूद भी सब कुछ करती है। जितनी ताकत आप में है आदमियों में, उसके मुकाबले 5-10% से ज़्यादा नहीं है। ये बात आपको पहचाननी पड़ेगी, आपको माननी पड़ेगी। और पेरेंट्स को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि हम लड़की के ऊपर अननेसेसरी कंस्ट्रेंट नहीं लगाएं, उनको कमज़ोर नहीं समझें।